Assalamu alaikum. My name is Muhammad Isa and I'm the course instructor for Pakistan Studies. Before getting into the lecture, let me introduce myself. I hail from Quetta, Balochistan, and I have done my master's and MPhil from the Department of History, Quaid-e-Azam University, Islamabad, and currently I am enrolled in PhD in the same department. So, coming to Pakistan Studies. When we look at Pakistan study, the first question which arises in our minds is that what is Pakistan studies? It is the answer to this question is that it is basically the study of Pakistan, the history of Pakistan, the economy of Pakistan, the politics of Pakistan, the society of Pakistan. Studying Pakistan at different levels, through different perspectives, through different lenses, through different in different ways we study Pakistan. We look at geography, we look at its environment, we look at its society, we look at its culture, we look at its politics. तो हम पाकिस्तान स्टडीज़ को जब पढ़ते हैं उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ नज़रियों से, उसके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. Or obviously Pakistan studies is not just the Pakistan studies, it's obviously the history that we do focus from ancient times till today. जिस तरह से मोहनजो दाड़ो है, जिस तरह से जो है वो जो बाद में हमें मुग़ल नज़र आते हैं, हमें बाद में बहुत सारी उसकी हिस्ट्री में ब्रिटिश नज़र आती है, इंडिया नज़र आती है. इट्स फ्रीडम स्ट्रगल दैट वी लुक अपॉन, एंड देन इन 1947 Pakistan comes into existence, and then post partition histories, that how its politics, how its economy, how its society evolved till today. तो हम बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ को इन हिट्स holistic form Pakistan studies को पढ़ते हैं. The second question which arises in our minds, that what is the rationale for that course? इसका rationale क्या है? हम पाकिस्तान studies पढ़ते ही क्यों हैं? Why do we study? There are different rationales. The first one is that it is a part of national curriculum and it is a compulsory subject and we have to study this. The second point is that it is the objective of the government and it is basically the objective of the state of Pakistan to make aware these students and its citizens of its history, of its struggle for survival. So this is basically the rationale. The second aspect of this rationale is that it is part of the competitive exams, and it is part of every different exams that we do study. So for that we also study Pakistan studies. So basically what we will be doing in this course is that we will be studying Pakistan from different perspectives, from different point of views, and the rationale which we have to keep in mind that it is the course that I'm going to teach is not only for it can help you in your studies also, but it can also help you in your competitive exams, that is CSS and PMS, if you are going to pursue it further. But for this I have designed the course, and the course work plan is which I am going to do. So the objective of the course is that the course is designed to introduce the students to the major historical events which led towards the creation of Pakistan in 1947. The course will be an historical overview of causes and consequences behind the creation of Pakistan. The course will also look into the political history of Pakistan from 1947 to present. Moreover, the course will emphasize two themes. First, it will look into the historical evolution of creation of Pakistan, and secondly, it will focus on the major political, constitutional, and economic developments in the history of Pakistan. So main purpose of this course is to make the students aware of the history, nation building, and the political system of Pakistan. I have basically divided this course into two sections. The first one is pre-partition, that is we call it Pakistan movement, while the other section is post-partition, that is we call it the history of Pakistan. So in pre-partition, the first we will be having a course introduction and India from 712 to 1800 AD an overview. The second topic which we will be focusing on will be the East India Company rule and the War of Independence 1857 and the British colonial rule. In third section we will be studying the Muslim revivalist movements. In fourth section we will be talking about the Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan, two nation theory, Urdu Hindi controversy, Indian National Congress and All India Muslim League.
After that, we will be looking for constitutional reforms of 1909, Lucknow Pact 1916, reforms of 1919, World War I, and the Khilafat movement. While in the next section, we will be talking about the Simon Commission, Nehru Report, Jinnah's 14 points, Khutbah Allahabad of 1930, and Indian Act of 1935, elections 1936-37, and the Congress ministries. In the next section, we will be talking about the Pakistan movement from 1942-1947. And then we will come to the next section, that is post-partition, which we call it the history of Pakistan. So after the creation of Pakistan, we will be looking into its early difficulties of Muslims in the establishment of Pakistan, and then we will be looking and we will be critically examining the ideology of Pakistan, and then we will be looking onward. We will be looking for the early political and constitutional developments. That is the period from 1947 to 58. And then onwards, we'll be taking up Ayub regime, Yahya regime, and the dismemberment of Pakistan till 1971. And then from 1971 to 1977, we will be talking about Zulfikar Ali Bhutto and his reforms, and then Ziaul Haq, and then the democratic interlude from 1988 to 1999, and then Musharraf era and war on terror from 1999 to 2008. Then we'll be talking in detail about the foreign policy of Pakistan, and then in the last section we'll be talking about the economy and society of Pakistan. So in the course outline, I have suggested different books which you can read, which you can study for your personal readings, which you can study for personal understanding. There are different books well published from very authentic publishers, so you can study Pakistan, study on your own if you want to from these different given books. So before starting the formal Pakistan studies lectures, before going into that, we have to understand some basic concepts. These concepts are quite general and they are not specific to the course Pakistan studies. They are just general tools by which we can understand different courses, by which we can understand different things. तो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें मुख्तलिफ मौक़े पर जो मुख्तलिफ हमें कोर्स में आगे इश्यूज़ नज़र आएंगे, आगे जो हमें डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, और डिफरेंट जो हमारे पास इन द कोर्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ जो मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स एंड थियरीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. These are 6 basic concepts. However, they are not limited to these 6 concepts. इसमें और भी बहुत से concepts हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट करके 6 concepts basically आप लोगों के लिए shortlist किए हैं that they are very important specifically for this course. So the first one is analysis. इसमें हम देखेंगे कि एनालिसिस करते किस तरह से हैं. एनालिसिस को हम उर्दू में तज्जिया कहते हैं. हाउ वी डू एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब ये एनालिसिस किसी इवेंट का भी हो सकता है, ये एनालिसिस किसी पर्सनालिटी का भी हो सकता है. दिस एनालिसिस कैन बी ऑफ एन इवेंट और अ पर्सनालिटी or a place, or it can be of a movement, or it can be of anything. So basically this is the first thing for students to understand, that what is analysis. When you look at things, you do not accept it the way they are, but what you do sifting in it, you do filter out many things. तो वो जो filter out करते हैं उसके लिए हमें basically एक टेक्निक चाहिए होती है एनालिसिस की, कि जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एनालिसिस है क्या चीज़. The second one is concept of space and time. ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है. ये बहुत ज़्यादा आजकल फ़िज़िक्स के अंदर और बाकी जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें स्पेस और टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है.
So we basically have to understand space and time in relation to our own course, that is Pakistan Studies. क्योंकि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वक्त के साथ साथ, जो है वो नई डिस्कवरीज हो रही हैं. सो वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू डिफरेंट जो आगे जितनी भी नई नरेशंस आ रही हैं, जितनी एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, हमें खुद को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ना है. और हमें नए कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी नए मॉडर्न थेरीज हैं और जितने भी नए हमारे पास इन्वेंशंस आ रही हैं, वी हैव टू लुक फॉर दैट टू. बट द बेसिक थिंग विच स्पेस एंड टाइम इज़, हमें इसको हिस्टोरिकल और पाकिस्तान स्टडीज़ की हिस्ट्री के साथ रिलेट मैं बाद में करूँगा. एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि स्पेस एंड टाइम होता क्या है और स्पेस एंड टाइम का हमारे कोर्स के साथ ताल्लुक़ क्या है. सो बेसिकली स्पेस एंड टाइम को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. The third basic concept which I'll be talking about, the historical reasoning. So historical reasoning, what do we say? We have to define, or we have to, if not define, we have to understand basically that what is historical reasoning. It is related to history, and we each and every human being, whether in personal capacity or on a collective level or on a social level or on a national level or on an international level, we have our own different histories. So उस different histories की मुख्तलिफ different reasoning होती है. So we have to basically understand this basic concept कि historical reasoning होती क्या है, इसको how do we understand it, how do we practice it in our daily lives. ये हमारे historical reasoning हमारे हर aspect को affect करता है, whether that is our culture, whether that is our politics, whether that is our traditions, whether that is our religion. So हमारे हर aspect को historical reasoning जो है वो affect करता है. So we will be looking into historical reasoning, that what is basically historical reasoning and what effect it has made and what is the use of historical reasoning in our course and in Pakistan Studies. The fourth point is facts and interpretations. It's a very important thing that we should understand, and we must understand that what are facts and what are interpretations. उर्दू में कहते हैं हकाइक क्या हैं और उसकी तशरीह क्या है. There are different facts. We have to understand this phenomenal complex this complex phenomena. We have to understand this complex phenomena of facts and interpretations. That what do we mean by facts and what do we mean by interpretations. तशरीह क्या है और वो हकाइक क्या हैं. We have to look into those things. इस डिबेट में हम जाएंगे and we will understand कि facts और interpretations पाकिस्तान के हिस्ट्री को और पाकिस्तान स्टडीज़ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, and how do these facts are sometimes molded, sometimes affected, sometimes distorted, and sometimes even there is silence. तो किस तरह से जो हकाइक हैं उसको मसख किया जाता है, किस तरह हकाइक को छुपाया जाता है, किस तरह से हकाइक को कभी कभार हकाइक को गायब कर दिया जाता है. So based on those facts, we will be looking for different interpretations. कि when there are some facts, there are interpretations related to those facts, and when facts are changed, the interpretations do change. So we will be looking to different interpretations and facts. The fifth point is opinions and judgments. We have to understand opinions and judgments as a basic concept. And the sixth one is causation. What is causation? So coming to the first point, that is analysis. उर्दू में हम इसको कहते हैं तज्जिया. So analysis in social sciences means answering the following questions. Number one, what of an event? Number two, why of an event? Number three, how of an event? And number four, in modern studies, opinions are also part of analysis. When we do analysis, first we do understand. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे बहुत से तारीख़ी वाक़यात हुए हैं, अगर हम तारीख़ी वाक़यात का जिक्र करते हैं, what we first at the stage of analysis, what we need to do is that we have to understand the what of an event. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए what से मुराद ये है कि वो जो कहानी आप बयान कर रहे हो या वो जो इवेंट हुआ है आप उसको बयान कर रहे हो, उसमें what क्या.
So this kya or what is very important that you need to understand. Let's take an example. एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल यू टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कि वी हैव स्टडीड इन आर डिफरेंट हिस्ट्रीज हम टेक्स्ट बुक में बहुत पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आया, उन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक किया और अटैक करके यहाँ पर पहली मुस्लिम हुकूमत कायम की. दैट्स अ ट्रेडिशनल डिस्कोर्स विच वी डू स्टडी. सो before analyzing anything, the first stage of analysis is that you have to understand the what of that. Okay, वह अब मोहम्मद बिन कासिम वाली जो स्टोरी है उसमें वट क्या है. मोहम्मद बिन कासिम, हिंदुस्तान, उसकी हमला, हिज अटैक, एंड देन द टूल्स विच ही यूज्ड एंड द होल स्टोरी. अगर आपको कोई नरेटर किसी किताब में या वैसे कोई ज़बानी आपको बताता है, सो ही विल टॉक अबाउट वो आपको पूरी स्टोरी सुना देगा. दैट नरेशन, that storytelling, this is the basic thing before the analysis of any event or any object or any personality or anything. So the word is very important. The second one is why. This word why basically जो हम उर्दू में कहते हैं क्यों, we basically look for the reasons. So when we will look for the different reasons, so obviously looking at those reasons, we will be doing research, we will be doing different studies, we will be consulting books, we will be consulting documentaries or films or movies or historical documents. तो मोहम्मद बिन कासिम को अगर उसने अटैक किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसकी स्टोरी सुनेंगे. वी विल लिसन टू द नरेशन कि 712 में इन 711 मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने अटैक किया कराची देबल के ऊपर, एंड देन फ्रॉम कराची ही वेंट टू मुल्तान. ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक उसने कब्जा किया, एंड देन व्हेन ही कंकर्ड दीज लैंड्स, उसने अपने एक सिस्टम कायम किया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज दैट व्हाई मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे क्यों हमला किया. So we have to look for the different reasons. So different reasons को जब हम देखेंगे कि for example मुस्लिम्स कहते हैं, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि वो इस्लाम फैलाने आया था. हिंदूज कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो वो लूट मार करने आया था. और बाकी जो डिफरेंट नैरेटिव्स वो कहते हैं नहीं जी, वो ना लूट मार करने आया था, ना इस्लाम फैलाने आया था, वो बल्कि जो ख़वातीन जिनको पकड़ा गया था उनको बचाने के लिए आया था. And there are thousands of explanations to this. When we look at different reasons, we do explanations, we give explanations, we give interpretations to all those things. So the why of an event is the second step that we should be looking for the reasons that why a thing happened. और reasons एक भी हो सकता है, reason हजारों भी हो सकते हैं. So this is the second step in analysis in social sciences. When you do study an event, when you do study a personality, or when you do study some kind of phenomena or an abstract concept, for that you have to look for the why of that. And why का जो है क्या, why का है जो क्यों, इसको देखना is the ये सबसे मुश्किल काम यही है कि why something happened, why this is historical event took place. The third point is how of an event, that how this event occurred. This shows the whole process of that event, and you have to look into bit by bit and piece by piece. You have to break into different bits and pieces. So when you just break into different bits and pieces and you look at towards this process, that becomes the third section of analysis. You do how. So let's take back the example of Mohammed bin Qasim. हम उसका example अगर हम लेते हैं, so the first is Mohammed bin Qasim 712 में आया और आके उसने अटैक किया, वो किया, मुल्तान तक आया. मुल्तान तक आने के बाद पीछे से जो रूलर था उसके अंदर उमैयद रूलर, उसने उसे वापस बुला लिया और बुलाने के बाद उसको कत्ल कर दिया. So this is the story of Mohammed bin Qasim. Okay, fine. The second step is why he came. So हम reasons देंगे मुख्तलिफ. Reason number 1, reason number 2, reason number 3, reason number 4. So these were basically the reasons. अब उसमें से बहुत से कुछ एक दो रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये था कि मुस्लिम एक्सपेंशन चल रही थी. विल बी डिस्कसिंग दिस स्टोरी ऑफ मोहम्मद कासिम इन डिटेल इन आगे जो लेक्चर आएगा, बट यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मुस्लिम्स जो थे उस वक्त एम्पायर बना रहे थे, अपनी हुकूमतें बना रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे. तो उस एक्सपेंशन का मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर हमला करना एक दैट वाज वन पार्ट.
द सेकेंड रीज़न इज़ कि उस वक्त वो जो द इमीडिएट रीज़न फॉर दैट अटैक वाज कि वो जो कश्ती पकड़ी गई थी और उसमें जो तजारत का सामान था, तो दैट वाज द सेकेंड रीज़न। द थर्ड रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग जो उमैयद के अगेंस्ट थे वो भाग कर हिंदुस्तान की तरफ आ गए थे, तो उसको चेस करने के लिए भी मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। सो दे आर डिफरेंट रीजंस वी लुक फॉर द वाई ऑफ दैट इवेंट, एंड द थर्ड इज हाउ दैट इवेंट टुक प्लेस। वो कश्तियों में सवार होकर आए, वो अपने साथ मंजनीक और ये जितने भी हैं वो उठा कर लाए और आकर यहाँ पर अटैक किए, जंग करके राजा जहर को शिकस्त दे दी, एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड हिज रूल, एंड रूल कैसा हुआ। So this is basically a short, very basic, short, a compact introduction, or or a compact, overview of the analysis. The fourth point in analysis in modern times is that opinions. पहले एक मूवमेंट चली थी, पॉजिटिविस्ट मूवमेंट्स जिसको कहते थे, और पॉजिटिविस्ट मूवमेंट का यह था कि जब आप कोई कहानी बयान करें, जब आप कोई इवेंट बयान करें, तो उस इवेंट को हू बहू जैसे हुई थी आप बयान करें, बेशक उसके रीजंस भी दे दें, बट आपने अपना ओपिनियन नहीं देना। यू शुड कीप योर सेल्फ आउट ऑफ इट। ये पॉजिटिविस्ट एक मूवमेंट थी जो चली थी, वो ये उसका कहना था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, जो पोस्ट मॉडर्निज्म एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं, उसमें यह है कि आप जो है अपना ओपिनियन, आप अपना जो एनालिसिस के अंदर अपना आपका जो टेक है, यू डू इंक्लूड योर टेक इनटू दैट एनालिसिस. So basically today in this modern era, when we do analysis, we look for the what, why, how of an event, or of a personality, or of something of an abstract, and we give our own opinion about that. And obviously the opinion which we give, the opinion जो हम opinion देते हैं, जो opinion हम वहाँ पर लिख कर या बता कर समझा कर बयान करते हैं, obviously that opinion कोई फाइनल ओपिनियन नहीं होती, वो चैलेंज भी हो सकती है, उसके खिलाफ एक दूसरा ओपिनियन भी आ सकता है, और मेरा अपना जो ओपिनियन है वो बाद में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में चेंज हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली एनालिसिस दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड. ये कोई स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए नहीं है, बल्कि एनालिसिस हर सब्जेक्ट के लिए और हर ज़िंदगी में मामूल के लिए हमें ये एनालिसिस, ये तज्जिया काम आता है, क्योंकि व्हेन वी लुक एट डिफरेंट थिंग्स, हमारे सामने बहुत सी सारी चीज़ें ब्लर हुई होती है, हम किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन कायम नहीं कर पाते. तो उसके लिए बेसिकली व्हेन वी डू एनालिसिस, we break into different phases, when we break into different bits and parts, and then we do study that, and then we make, we form our own opinions about that. So this was the first point, analysis. The second thing is very important, और काफ़ी complex भी है. It is space and time. The first question is, what is space? Space है क्या चीज़? क्या space हम उर्दू में जिसे हम कहते हैं खला, क्या space खला है? क्या space ज़मीन है? क्या space एक एक physical object है, और is it a non-physical object? ये space आखिर है क्या चीज़? Space is basically an abstract concept जिसको हम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं. हम स्पेस खला को भी कहते हैं, हम स्पेस ज़मीन को भी कहते हैं, हम स्पेस जगह को भी कहते हैं. We do call space, an empty place. We do call space, a physically geographical location. We do call space a kind of place. तो space के different meanings हैं. So what kind of space we will be studying in this course is, a place, जगह जिसको हम उर्दू में कहते हैं. तो space से मुराद हमारी यहाँ इस कोर्स के अंदर जगह होगी, कि यानी मिसाल के तौर पर एक इवेंट हुआ है पुराना 1857 के अंदर एक जंग हुई है अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच, उसको हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वो जंग आज़ादी कहाँ लड़ी गई? वो हम कहते हैं जी वो हिंदुस्तान में लड़ी गई. तो जब हम हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ करते हैं, वी बेसिकली रेफर इट टू अ प्लेस, अ स्पेस. हम उस स्पेस की बात करते हैं.
सो दिस इज बेसिकली अ स्पेस जो जहाँ जब हम पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स आगे पढ़ेंगे वी विल बी स्टडिंग इट, so we will be time and again referring to this word space, you know, कि space जो है वो ये एरिया है, वो एरिया है, फला एरिया है. So this is space. And then another important thing in this space is understanding the change in space. Okay, when you point space A, there is always a space B, there may be also a space C. तो स्पेस जो है वो मुख्तलिफ होती है. तो चेंज ऑफ स्पेस भी जब होता है तो एक एरिया से फॉर एग्जांपल दो एरिया, फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान एक स्पेस ए है, पंजाब स्पेस बी है. तो जब एरिया चेंज होता है, कोई उठकर बलोचिस्तान से पंजाब आता है या पंजाब से जाकर सिंध चला जाता है या केपी चला जाता है, सो this space change is called as change in the space. And why is it important, ये last point पे हम इसको discuss करेंगे. The third point is what is time. वक्त क्या है. क्या हम जो वक्त का वर्ड यूज़ करते हैं, क्या ये घड़ी के सुई के लिए हम यूज़ करते हैं कि टिक टिक होती है और वक्त चेंज होता रहता है. क्या हम दिनों को, महीनों को, सालों को कहते हैं वक्त. ये वक्त बेसिकली व्हाट इज टाइम. ये टाइम बेसिकली है क्या चीज़. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टाइम यू हैव टू लुक इनटू योर मेमोरी. क्योंकि जो चीज़ आपके मेमोरी में रह गई रिगार्डिंग टू पाकिस्तान स्टडीज़ कोर्स, जो मेमोरी आपकी है, टाइम के डिफरेंट भी साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, फिजिक्स में डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम इज अबाउट रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज़ इन हिस्ट्री कोर्स. के जो मेमोरी है आपकी, जब तक आपकी मेमोरी काम करती है, वो मेमोरी एक शख्स की भी हो सकती है, एंड दैट मेमोरी कैन बी अ कलेक्टिव मेमोरी, एंड दैट मेमोरी कैन बी ऑफ मेमोरी ऑफ नेशंस, एंड दैट मेमोरी कैन बी मेमोरी ऑफ इवन ह्यूमंस. Humans have collective memory, and nations have different collective memories, and each individual has his own memory. So we look into different memories, we point to some places. For example, एक अनपढ़ सा एक कोई बूढ़ा शख्स आपको फॉर एग्जांपल अगर मिलता है, आप उससे पूछते हो कि बाबा जी आप कब पैदा हुए. उसे एग्जैक्टली याद नहीं होता कि वो किस साल में पैदा हुआ है, तो वो आपको ये बता देगा मैं उस साल पैदा हुआ जिस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी या इतना ज़्यादा जलजला आया था, या इतना. सो ही इज़ बेसिकली रेफरिंग टू दैट टाइम. ही डज नॉट हैव एनी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ईयर कि 1947 में पैदा हुआ हूँ, 65 में पैदा हुआ हूँ, 70 में पैदा हूँ. नो, he does not referring to that, but he is referring to some time. So it is basically in his memory. तो ये जो कलेक्टिव मेमोरी है हमारी, या जो सिंगल मेमोरी है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टाइम. सो जब हम इस दो कॉन्सेप्ट को साथ मिलाते हैं, स्पेस एंड टाइम, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है हिस्ट्री के अंदर भी और पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में. अब फॉर एग्जाम्पल स्पेस और टाइम का आपस में ताल्लुक है कैसे. स्पेस की जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस इज अ प्लेस टू विच वी डू रेफर. हिंदुस्तान एक प्लेस है, पाकिस्तान एक प्लेस है, बांग्लादेश एक प्लेस है, यूएस इज अ प्लेस. इवन जब हम एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं तो हम कहते हैं ज़मीन एक प्लेस है, मरीख एक प्लेस है, एंड देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस. बहुत सारे कायनात हैं जहाँ पर different spaces, and there are thousands and billions of spaces. So when this concept of space and time is combined, इसका मतलब ये है कि किसी एक जगह पर किसी एक वक्त में जो इवेंट हुआ है, बेसिकली हम उसको देखेंगे. मिसाल के तौर पर आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हम कहते हैं जी कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उसका जो कैपिटल था वो कराची था. सो इन 1947 कैपिटल कराची था. तो सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे जो फेडरल गवर्नमेंट के होते थे वो कराची के अंदर होते थे. बाद में अयूब खान ने इस कैपिटल को चेंज किया, कराची से इस्लामाबाद ले आया. सो वो हम कहते हैं जी कि 1960s के अंदर जो है वो कराची से इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट हो गया. सो देयर इज़ इन 1947 में कैपिटल कराची था, बट इन 1960s में कैपिटल इस्लामाबाद बन गया. So there is change of space and there is change of time.
ये अहम इसलिए है कि जब स्पेस और टाइम चेंज होते हैं तो वक्त के साथ साथ, वक्त और ज़मीन और जगह के बदलने के साथ साथ कल्चर्स डिफरेंट, language becomes different, the environment becomes different, the situations whether that is political, economic or religious, चीज़ें चेंज होती रहती हैं. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं. एंड दैट इज़ कि एक वक्त था मुसलमान हुकूमतों में बगदाद के अंदर स्लेवरी पाई जाती थी, ग़ुलामी होती थी. लोग बिकते थे मंडियों के अंदर, जिस तरह से भेड़ बकरियाँ आज बिकती हैं. सेम वाज द केस विद ह्यूमंस वर सोल्ड लाइक एनिमल्स. तो वो ग़ुलामी के तौर पे एक प्रॉपर्टी, ह्यूमंस वर कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी. सो इन दैट स्पेस एंड टाइम ह्यूमंस वर कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी. और आज इसको समझ लें तो आज ना स्लेवरी है, आज ना ग़ुलामी है, ना ही जो है ह्यूमंस को प्रॉपर्टी समझा जाता है. तो आज अगर कोई स्पेस के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी भी आईएसएस ने जो बगदाद में किया था कि लोगों को ग़ुलाम बना लिया था, तो उस ग़ुलामी के ऊपर कितना जो है वो रिएक्शन आया पूरी दुनिया से. सो व्हेन टाइम चेंजेस, व्हेन स्पेस चेंजेस, द इवेंट्स दे डू चेंज. उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उस वक्त के हालात, माहौल होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. सो द लास्ट पॉइंट इज हाउ इज इट रेलिवेंट विद पाकिस्तान स्टडीज. इस स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल कि 1947 में एक शख्स था जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम कायद आज़म कहते हैं. वो 1947 में एक ह्यूमन बीइंग था, ठीक है. और आज 2021 है, इस्लामाबाद के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद ईसा. अब इन दोनों के दरमियान क्या मुश्तरक है? What is common between them? The commonality between these two is that they both are humans. Okay, fine. There is this single commonality between these two humans, that they are human beings. अच्छा, तो जिस वक्त 1947 के अंदर जिन्ना थे, कायद आज़म थे, उस वक़्त के जो लोग कपड़े पहनते थे, उस वक़्त के जो लोगों के रस्म रिवाज थे, क्या आज भी एग्जैक्टली वही हैं? नहीं. सो space has remained the same though time has changed, but when time is changed, these things such as cultures, such as languages, such as religious understandings, वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं. सो हमने जब पाकिस्तान स्टडी को पढ़ेंगे तो इसमें ऑब्वियसली हम स्पेस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को भी इन डिटेल देखेंगे. द सेकेंड पॉइंट इज हिस्टोरिकल रीजनिंग. तो हिस्टोरिकल रीजनिंग को समझने के से पहले, सबसे पहले आपको हिस्ट्री समझना पड़ेगा. व्हाट इज हिस्ट्री? सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, इट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ स्पेसिफिक स्पेस एंड टाइम. किसी एक ख़ास मखसूस जगह और टाइम के अंदर जब कोई इवेंट होता है और उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो मेमोरी के अंदर हो या चाहे किसी कागज़ या कलम के ऊपर हो, तो जब वो रिकॉर्ड हो जाता है, दैट बिकम्स अ हिस्ट्री. So how the second question is, why do we study history? What's the importance of history? So history is important because we humans have an instinct to be attached to our own history. हम अपने तारीख के साथ जुड़े हुए हैं. We are not different from that. 1947 से लेकर 2021 तक, आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए. The reason behind that is that the history of India and Pakistan is quite troublesome. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत से मसाइल थे हिस्ट्री के अंदर. कश्मीर वॉज वन ऑफ दैम. सो कश्मीर वॉज वन ऑफ दैम प्रॉब्लम. तो वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका. सो टिल टुडे पाकिस्तान इंडिया कुड नॉट एंजॉय एनी कॉर्डियल रिलेशंस. सेम इज द केस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, कि जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के बीच डिफरेंसेस हैं, दे हैव देयर ओन हिस्ट्रीज इन यूरोप के अंदर. सो टिल टुडे दे कुड नॉट रिकंसाइल विद ईच अदर. They still are different. So इसी तरह से दो कौम और दो कबीले की जो हम सुनते आते थे कि दो कौम और दो कबीले के बीच आपस में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी. The reason behind that was their history. So we are basically attached to our history. When we are attached to our history, we cannot get ourselves emancipated from that history. That's why we do exercise, we do behave, we do practice keeping in view our own history.
हर इंसान की अपनी ज़ाती हिस्ट्री होती है, हर इंसान हर मुल्क की अपनी हिस्ट्री होती है, माशरे की अपनी हिस्ट्री होती है. So they do behave, though they do act keeping in view their own histories. So when we come to historical reasoning, we give different reasons. When we give reasons, उस रीज़न को देने के पीछे जो है वो हमारी अपनी तारीख होती है. सो हर इवेंट जो होता है उस इवेंट के पीछे एक सक्सेसिव इवेंट्स हो रहे होते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल द डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, के हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, टूट गया, चला गया, हमारे अपने बंगाली भाई थे, तो हम ये नहीं कहते कि 1971 के अंदर जो है वो जंग हुई और हमसे अलग हो गए. हम कहते हैं कि बंगालीज के कुछ इश्यूज थे वेस्ट पाकिस्तान के साथ. वो 1947 में लैंग्वेज का इशू था, बाद में इकोनॉमी का इशू बना, बाद में जो है ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में उन्हें मैंडेट नहीं दिया गया, बाद में जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा थी, वहाँ के लोग नाराज़ थे यहाँ से. तो सक्सेसिव इवेंट्स हो रहे हैं. उन सक्सेसिव इवेंट्स के बाद 1971 के अंदर एक डिबेकल होता है ईस्ट पाकिस्तान का, और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो जाता है. So when we explain an event, usually we give historical reasoning. तो अगर हमारी historical reasoning correct या फिर informed, जिसको हम कहें, अगर informed history के ऊपर बेस करती थी, तो हमारा जो understanding है, तो हमारी जो explanation है current event की, that will be an informed explanation of the an event. तो अब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर देते हैं, अगर हम कोई भी कहानी बयान करते हैं, तो अगर हमें उसके पिछले कहानियों को अच्छी तरह से हमें उसका ये समझ थी, तो हम मौजूदा कहानी को अच्छी तरह से समझा सकेंगे. सो when we can understand, अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट जो रीजनिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रीजनिंग इज़ कि जब आप हिस्टोरिकल रीजनिंग ठीक तरह से करते हो, तो आपकी जो करंट इवेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है. वह जब आपकी करंट इवेंट की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है, सो देन यू बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल रीजनिंग आप नए काम करते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हमने 1971 में हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, वो एक अलग मुल्क बन गया. तो जब वो अलहदा मुल्क बन गया, तो हमने इसकी हिस्टोरिकल रीजनिंग जब की कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये इश्यूज़ थे, इस वजह से 1971 में हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ. तो अब इन 1971 वी डू नो दैट ईस्ट पाकिस्तान हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. तो अगर हम जो पीछे जो इवेंट्स हुए हैं, अगर हम उसको दोबारा ना दोहराएं, हम उन इश्यूज़ को दोबारा ना दोहराएं, तो हमसे आगे कोई भी सूबा अलग नहीं होगा, हमसे पाकिस्तान दोबारा नहीं टूटेगा. So this is what historical reasoning is very important in Pakistan studies and in any different history subject. Another important, the basic concept is the facts and interpretations. सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर फैक्ट्स. फैक्ट्स को उर्दू में हकाइक कहते हैं. हकाइक क्या चीज़ है? देयर आर ब्रूट फैक्ट्स. कुछ हकाइक होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे जो ब्रूट फैक्ट्स हैं वो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. एंड एवरीवन नोज अबाउट फैक्ट्स, कि फैक्ट्स क्या है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई विल अगेन कम टू मोहम्मद बिन कासिम. Let's talk about, let's take some facts from Muhammad bin Qasim. मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ही वॉज एन अरब था वो. वेयर वॉज ही फ्रॉम? ही वॉज फ्रॉम बगदाद. ओके. व्हेन डिड ही कम टू इंडिया? इन 711. which places did he conquer? From Karachi, from Sindh to Multan, those areas. Okay. He was killed. Yes, he was killed. So these brute things which we look at them, they are called as facts. They speak for themselves. जो फैक्ट्स होते हैं वो खुद बोलते हैं, उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट है कि पानी है, पानी का कोई कलर नहीं है, तो पानी खुद कह रहा है कि मेरा कोई कलर नहीं है, तो ये एक फैक्ट है. इसी तरह से एक और फैक्ट है कि जो पानी है वो H2O से बना है, तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो एग्जिस्टेंस है, दैट्स अ फैक्ट. फाइन. इसी तरह से अगर आप कहते हो कि आसमान जो है वो नीला है, तो दैट्स अ फैक्ट. एक फैक्ट है कि नीला है,
बेसिक अगर आप नीले को काला कहते हो, काले को सुर्ख कहते हो, दैट्स अप टू यू, बट देयर यू विल गिव समथिंग टू दैट, उस आसमान को आप एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फैक्ट्स दोगे. यू नो, इट इज़ अ फैक्ट कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, दैट्स अ फैक्ट. सो इसी तरह से जो अनडिनाएबल, जो कंसेंसस जिसके ऊपर होता है, जिन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस लोगों का होता है, जो दी अनडिनाएबल थिंग्स होती हैं, उनको हम हकाइक और फैक्ट्स कहते हैं. सो द सेकेंड इज व्हाट इज एन इंटरप्रिटेशन. अब जो इंटरप्रिटेशन है, तशरीह जिसको हम उर्दू में कहते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट्स. व्हाट वी डू इज दैट वी टेक इंटरप्रिटेशंस एज फैक्ट्स. हमसे अक्सर ये गलती हो जाती है कि हम तशरीह को फैक्ट समझ लेते हैं. Facts are those things which are undeniable and they are, people have consensus over them. That becomes a fact. One interpretation, you may differ in interpretation. Interpretation कहते हैं तशरीह को. Let me give you an example. एक शख्स है, हॉस्पिटल में जा रहा है भाग भाग कर, अपनी उसकी कोई छोटी सी बेटी लेकर गोद में उठाकर जा रहे हैं हॉस्पिटल भाग कर. तो एक दो ऑब्जर्वर बाहर से देखते हैं उस शख्स को कि वो भाग भाग कर अंदर चला गया. अब इन जो दो ऑब्जर्वर्स हैं, इनके बीच इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि वो एक आदमी है, उसकी गोद में छोटी बेटी है और वो भाग भाग कर हॉस्पिटल चला गया. अब दीज आर फैक्ट्स, दे बोथ हैव कंसेंसस ऑन देम. तो इन दोनों के लिए ये जो फैक्ट्स हैं, ये है कि एक शख्स है, वो उसकी गोद में बेटी थी छोटी सी, हॉस्पिटल भाग भाग कर जा रहा था. दीज आर फैक्ट्स फॉर दीज टू पीपल. अब इसकी इंटरप्रिटेशन दोनों की मुख्तलिफ हो सकती है. वो एक शायद कहे, एक लेट्स सपोज कहें कि एक कहता है कि यार उसकी छोटी बेटी बीमार थी, इसलिए वो भाग भाग कर जा रहा था हॉस्पिटल लेके जा. वेल, इंटरप्रिटेशन हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है और गलत भी हो सकती है. दूसरा कहता है नहीं, हो सकता है उसकी अम्मी बीमार हो और अम्मी को पूछने के लिए बार बार जा रहा हो सकता है कोई तीसरा कहे कि नहीं, उसको शायद वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी होगी, अम्मी बीमार होगी, उसके लिए दवाई लेकर जा रहा होगा. सो कि फैक्ट्स के ऊपर कंसेंसस है कि मर्द है, बच्चा गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल चला गया थे, इसके ऊपर कंसेंसस है, बट इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंसेंसस नहीं है. सो व्हेन वी डू इंटरप्रेट थिंग्स, जब हम किसी चीज़ की तशरीह करते हैं, वो तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है. सो व्हेन फैक्ट्स आर डिफरेंट, तो तशरीह भी चेंज हो जाएगी. तो जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के अंदर फैक्ट्स हैं, हम उसको देखेंगे, हम उसकी मुख्तलिफ तशरीह देखेंगे. तो हम फैक्ट्स को भी देखेंगे, हम उसकी इंटरप्रिटेशंस को भी देखेंगे. सो वी विल बी लुकिंग फॉर डिफरेंट फैक्ट्स, फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. वन थिंग यू हैव टू understand about the same case of Muhammad bin Qasim, which I told you, that Muhammad bin Qasim, there are facts that he came to India, he conquered India, and he was called back and he was killed there. These are facts, but we can differ on the interpretations that कि वो आया क्यों था, गया क्यों, मारा क्यों गया, किस वजह से मारा गया. तो the interpretations may differ from one point to another. One important thing which we have to understand is that कि जब फैक्ट्स चेंज होते हैं तो इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाती है. जब फैक्ट्स चेंज होते हैं, इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो जाती है. तो इसलिए कि किसी शख्स ने किसी एक इवेंट को मुख्तलिफ फैक्ट्स के साथ पढ़ा है तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होगी. अगर कोई और उसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स के साथ पढ़ेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी. मूविंग अहेड, ओपिनियन एंड जजमेंट. सबसे पहले तो हमें इन दोनों के दरमियान we have to understand the difference between opinion and judgment. By opinion is that it is your own point of view, and judgment is that you judge something, that you give a declaration about something. Fine, let me give you an example. Opinion क्या हो सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम जिस वक़्त उसने हिंदुस्तान पर हमला किया, एक ओपिनियन है, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू कि वो यहाँ पर इस्लाम फैलाने आया था. इसके हक़ में भी दलाइल हैं, इसके अगेंस्ट भी दलाइल हैं, बट इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन. द सेकेंड ओपिनियन दैट ही केम टू इंडिया मालो दौलत लेने के लिए, दैट्स अनदर ओपिनियन, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द थर्ड इज़ कि वो मालो दौलत लेने के लिए नहीं आया, बल्कि वो जहाज फंसा हुआ था उसको छुड़ाने के लिए आया. दैट्स थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज ओपिनियंस 1, 2 and 3 जो मैंने आपके सामने बयान की,
these opinions are based on certain facts. So coming to judgment, judgment is different from opinion. In judgment, we give a declaration. We give something जो हम चीज़ों को जज करते हैं. We talk about that. कि फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन कासिम आया, वो तो मुसलमानों का हीरो है जी, दैट्स अ जजमेंट. वो तो इस्लाम फैलाने के लिए आया था, दैट माइट बी एन ओपिनियन, लेकिन मुसलमानों का हीरो है वो, दैट इज़ अ जजमेंट. यू हैव डिक्लेयर्ड हिम एज द हीरो ऑफ मुस्लिम्स. और बहुत से लोग मोहम्मद बिन कासिम को कहेंगे कि ये तो यहाँ हिंदुस्तान में माल लूटने के लिए आया था, ये तो विलन है. सो दैट calling him as a villain is basically a judgment. So what we do in history is that it is हमें इस बात की इजाज़त है कि हम ओपिनियन दें, बट वी आर नॉट अलाउड टू पास जजमेंट्स ऑन एनीथिंग. हम किसी चीज़ के ऊपर जजमेंट, मोहम्मद बिन कासिम अगर एज अ मुसलमान और अगर एज अ पैट्रियट आप देखने की कोशिश कर रहे हो, सो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि वो आपका हीरो है या आपका विलन है. But as a student of history and as a student of Pakistan studies, you don't have to pass any judgment on anyone. You have to study different events, you have to study different facts, you have to look for different interpretations, and then you can form your own opinion about someone. When you form your own opinion, जब opinion बनता है, उस opinion के बनने में जो है वो ये है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो. There can be different opinions. बट अब जजमेंट जब आती है तो व्हेन यू कॉल, जब आप जजमेंट पास करते हो किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, दैट यू थिंक दैट इज समथिंग फाइनल. हाउएवर, इस ओपिनियन और जजमेंट को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज सोशल रिलेटिविटी. सोशल रिलेटिविटी से मुराद ये है कि एक सोसाइटी के एक सेक्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हों, दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर हो सकता है वो चीज़ें मुख्तलिफ हों. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इट इज़ कॉमन समझा जाता है इस बात को कि जो है वो कि जो एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल लव, वी कॉल द वर्ड लव इन इंग्लिश इज़ मैन फॉर समथिंग, मोहब्बत के ज़िम्मे में यूज़ होता है. बट द सेम वर्ड लव इन पश्तो इट इज़ फसल के काटने को कहते हैं. एंड द सेम वर्ड इन उर्दू लो इज़ यूज़ होता है कि कोई चीज़ आप ले लें. सो देयर आर सम डिफरेंट कॉमन वर्ड्स, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट रीजन्स, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन डिफरेंट एरियाज. सो सोशल रियलिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी सोसाइटी में पर्दे को जो है वो ईस्टर्न सोसाइटी में पर्दे को अच्छा समझा जाता है, जबकि फ्रांस में पर्दे के खिलाफ जो है वो लॉज पास हो रही हैं. So in different societies there are different realities. Things are relative in one point to another point. So when things are relative, when things are different, so you have to look the facts in different social realities. तो हम social relativity के अंदर opinions को देखते हैं, facts को देखते हैं और उसमें फिर अपना opinion बनाते हैं. There is, however, some methodological restriction about opinion judgment. जब आपके पास facts नहीं हैं तो you cannot form an opinion. ठीक है. और जजमेंट तो सिरे से आपने पास करनी ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में. हो सकता है किसी ने काले कपड़े पहने हो, आपको काले कपड़े ना पसंद, आप उसको यार ये कितने बुरे कपड़े तुमने पहने हुए हैं, और वो आगे से कहे कि ये तो मुझे बहुत, दिस इज़ माई फेवरेट कलर. Your favorite color might be white, his favorite color might be black. So you cannot pass judgment. You may form an opinion that in my opinion I don't like black colors. He might say that it is your opinion, but in my opinion I love black color. So there are methodological restrictions both on opinion and judgment. You can form an opinion based on some facts, but you cannot pass judgment based on your opinions. So judgment की बिल्कुल restriction है. सोशल साइंसेज के अंदर आपने कोई जजमेंट पास नहीं करनी. हाउएवर यू कैन फॉर्म योर ओन ओपिनियन. द लास्ट पॉइंट इज कॉजेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस कॉन्सेप्ट कॉजेशन इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉज. कॉज को उर्दू में हम वजह कहते हैं.
when this process of understanding the causes of an event or something else, when you look at when you try to understand the causes of something dot dot dot, whatever that may be, that becomes the process of causation. For example, आप किसी भी इवेंट को देखते हैं कि इन 2010 सॉरी इन 2005 कश्मीर में ज़लज़ला आया. So when you look to the causes of that causes will be natural causes. You study those causes. When you study those causes, that becomes a process of causation. इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट में जब भुट्टो को फांसी दी गई, तो दैट वाज एन इवेंट कि भुट्टो को फांसी लग गई. तो जब भुट्टो को फांसी लगी, you study the different causes of that. When you study the causes, that process becomes causation. And why causation is so important? Causation is important in history and in the subject of Pakistan studies, that if you want to study Pakistan, you must know the causes of each and every event. For example, Pakistan was made in 1947. Anyone can question you that what were those causes that led to the creation of Pakistan. Those causes may be social, those causes may be political, those causes may be violence. So causes basically gives you the understanding of an event. Causes basically elaborates an event in a better way. The last point of this causation is evaluating different causes. We evaluate different causes. For example, मैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ. मैं इसके ऊपर हिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान के कॉज को देखूंगा. लेकिन अगर मैं पंजाब के हिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा, तो पंजाब में ऑलरेडी जो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कॉजेज बयान किए हैं, हो सकता है वो आ जाएं, लेकिन वही कॉजेज मुख्तलिफ मानी रखते हैं. So in future lectures we will be talking about this process of causation in detail. So these were the basic concepts which each and every one has to understand in order to work in social sciences, or not if in social sciences, in everyday life में आपको ये काम नजर ये आपको काम आएंगी. So a quick recap कि हमने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस की एनालिसिस. द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज concept of space and time. The third one is historical reasoning. The fourth one is facts and interpretations, and the fifth one is opinions and judgments, and the sixth one is causation. So in the next lecture we will be talking about the we will start with the history of India first before coming to Pakistan. We will talk about the history of India. So I'll meet you in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.